Hello everyone, myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss the topic context-free grammar from the subject Theory of Automata and Formal Languages. In this lecture, I will discuss about what is a context-free grammar, what are the basic tuples of context-free grammar, how can we write a CFG for a given language, and the various type of derivation trees. It is either in the form of a sentential as well as in the form of the parse tree. So, starting from a very basic, let us discuss what is our definition of a context free grammar and what are the basic four tuples of CFG. So, CFG stands for a context free grammar, right? हम बेसिकली अगर बात करें फ्रॉम द यूनिट 1 एंड यूनिट 2 व्हाट वी हैव डन, हमारी एक रेगुलर लैंग्वेज है, उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, उसी के लिए आप एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं। बट नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ये समझ रहे हैं कि जो हम रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहे थे और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट इज कंटेस्ट फ्री ग्रामर? इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर प्लस नॉन रेगुलर लैंग्वेज। मतलब हम रेगुलर और नॉन रेगुलर दोनों लैंग्वेज के लिए CFG लिख सकते हैं, उस बेसिस पे उसके लिए हम एक PDA मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं। एग्रीड? तो अब यहाँ से बात ये आती है कि what exactly is the definition? I have talked about the emergence of CFG because we have discussed about regular language. For regular language, we have written regular expression, that is the mathematical form, and for the regular language and regular expression, I have designed a finite automata machine. It would either be in the form of a DFA as well as the NFA. But for the non-regular languages, we were not able to design a finite automata machine. Now, what are the non-regular languages? Let us take an example, a ki power n and b ki power n. We have never discussed about the FA of a ki power n and b ki power n. Why? Because in this we have to maintain the count of b's in respect to the count of a's, right? If we were asked to draw a FA for AA triple B, we can simply draw, that is fixed. If we were asked to draw an FA for what? That number of A's is greater than 2 and number of B's is equal to 2, we can simply draw it as. But when we have to maintain a count of something in respect to the count of another thing, then we have to store something at some place. That's why these are the non-regular language, and that's the only reason we were not able to draw a FA for these non-regular languages. Now, let's take another example, a ki power Pn where P is prime, right? We have drawn the FA for what? Even number of A's, odd number of ones, odd number of zeros, even number of zeros, even number of ones, but we have not drawn an FA for what? Prime numbers, because in prime number there is a sequence of activity, that is, as we know that 2, 3, 5, 7, 11, these are the prime numbers. So, there is nothing fixed. In even number we know that we will read 2 zeros, then 4 zeros, then 6 zeros, we can easily maintain a cycle of that. But in prime numbers we can't maintain a cycle of that. So, that we have to store something at some place. So, what is a context setting as of now is that for the regular language we can simply write regular expressions, for that we can simply design FA machines. But for the non-regular language we were not able to write FA because we have to maintain a count of something in respect to the count of another thing. That's the basic reason we were not able to design FA, right? Now, from that we came to an existence that regular language plus non-regular language is equal to a context free grammar. Once we write a context free grammar for regular and non-regular language both, then we will design a PDA for them, right? Now,
Moving ahead, it is a formal grammar which is used to generate all possible pattern of a string in which the formal language can be written. Right? मतलब सारे पैटर्न्स की बात कर रहे हैं जिसमें हम रेगुलर और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं. नाउ द बेसिक थिंग विच वी हैव टू फोकस, कंटेस्ट फ्री ग्रामर इज डिफाइंड एज अ 4 tuple machine. Please remember 4 tuple machine, that is V, T, P and S. Now what is the meaning of V? V is a set of non-terminal symbols, right? V is a set of non-terminal symbols या variables, या मैं इसको ऐसे कहूं कैपिटल लेटर्स A, B, C. So what we understand from there, V का मतलब है set of variables या set of non-terminal symbols, that is the uppercase letter. These are the 3 terms we should know. Now what is T? T are the terminal symbols or lowercase letters, that is A, B, C, that is they are used for generating an string, right? Now what is P? P is production rules. Agreed? P is production rules and S is the start symbol, right? Now as of FA we have known that these are the 5 tuples and in this we know that Q matlab states, this matlab input alphabet, this is the transition function, this is the initial state, this is the final state, right? Here what we are doing, states की जगह हमारे variables आ गए, input alphabet की जगह हमारे terminal symbols हो गए, ट्रांजिशन फंक्शन की जगह हमारा प्रोडक्शन रूल हो गए और ये हमारी एक इनिशियल स्टेट के बारे में बात हो गई. एग्रीड? सो यहां तक की अंडरस्टैंडिंग अपनी सिर्फ ये है कि CFG एक 4 tuple मशीन है, V, T, P एंड S. V मतलब वेरिएबल्स, कैपिटल लेटर्स और नॉन टर्मिनल सिंबल्स. T मतलब टर्मिनल सिंबल्स और लोअर केस लेटर्स. S मतलब स्टार्ट सिंबल और P मतलब प्रोडक्शन रूल्स जो हमने डिफाइन करे होंगे किसी ग्रामर से कोई स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए. एग्रीड? नाउ नेक्स्ट, this is the first example we will discuss on CFG, that is construct the CFG for the language having number of A's over the set of A, any number of A's. अब हमें देखो सबसे पहले क्या पता है, इसमें इनपुट अल्फाबेट A है और हमसे क्या कहा गया कि एनी नंबर ऑफ A's के लिए CFG लिखनी है. तो भाई सीधा लैंग्वेज देख के ही समझ में आ गया एनी नंबर ऑफ A's हैं तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन A स्टार हो गया. एनी नंबर ऑफ A's एक्सक्लूडिंग नल होता तो A प्लस होता. दिस वी ऑल आर अवेयर ऑफ. अब एनी नंबर ऑफ A's हैं तो A क्लोजर मुझे यहां पे दिखा. अब अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें CFG लिखनी है इसकी. और CFG में हमसे क्या बात बोली गई कि एक 4 tuple मशीन है, उस 4 tuple मशीन के 4 टपल्स ये हैं. अब इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें एक अल्फा ड्राइविंग बीटा है. अब अल्फा का सीधा सा मतलब यह है कि अल्फा बिलोंग्स टू Vn और बीटा बिलोंग्स टू Vn Vt का क्लोजर. अब ध्यान यह देना है कि हमेशा और हमेशा एक CFG 4 tuple मशीन होने के बाद एक ग्रामर को कंटेस्ट फ्री ग्रामर तब कहा जाएगा जब अल्फा ड्राइविंग बीटा है और अल्फा में एक वेरिएबल है मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे और बीटा में Vn और Vt का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. इसी को हमने आगे देखा कि जब हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया और हमारे पास ये चीज है कि अल्फा ड्राइविंग बीटा है, अल्फा बिलोंग्स टू Vn है और बीटा बिलोंग्स टू Vn Vt का क्लोजर है. अब सीधा सा यहां पे बात आती है कि यहां पे तो एक ही वेरिएबल होगा, यहां पे Vn Vt का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, वी हैव टू स्टार्ट विद स्टार्ट सिंबल मतलब S से. अब S से शुरू करेंगे तो हमने सिंपल लिखा S ड्राइविंग. भाई S से कुछ ड्राइव होना है. अब अल्टीमेटली क्या ड्राइव, अब देखो A स्टार यहां पे लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं नल A, डबल A, ट्रिपल A, 4 बार A, इस तरह से कुछ पॉसिबिलिटी, तभी तो ये A स्टार है.
तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है? नल। सबसे छोटी स्ट्रिंग नल है, तो मैंने लिखा नल स्लैश। स्लैश मतलब दूसरा प्रोडक्शन रूल, एस से ड्राइव कर दिया नल सबसे छोटी के लिए। अब भाई सीधी सी बात है, हमसे क्या बोला गया कि वीएन वीटी का कॉम्बिनेशन होना राइट हैंड साइड पे, वीएन वीटी का क्लोजर। अब वीएन वीटी दोनों हो सकते हैं, वीएन वीएन भी हो सकते हैं, वीटी वीटी भी हो सकते हैं, एग्रीड। तो अब मैंने देखा जब वो वीएन वीटी का क्लोजर है, इट कैन आल्सो बी नल, तो मैंने यहां पे सिंपल नल लिख दिया अपनी लैंग्वेज को समझते हुए। अब बात अब यहां पे नेक्स्ट आती है कि अब यहां पे क्या प्रोडक्शन लिखा जाए? प्रोडक्शन वीएन वीटी का कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन हमने क्या लिखा? ए स्मॉल में, भाई सबसे पहला क्या है ये ना, और इसको रिकर्सिवली अटैच कर दिया एस को, बार बार कॉल होने के लिए। अब एस ड्राइविंग ए एस है, एस को नल पुट कर दो, ए आ गया। एस ड्राइविंग ए एस है, एस की जगह ए एस पुट कर दो, डबल ए एस हो गया, फिर नल पुट कर दो, डबल ए एक्सेप्ट हो गया। अब इसको हमने ये लिखा, और यहां मैंने यही समझाया भी, एस ड्राइविंग ए एस रूल नंबर 1 और एस ड्राइविंग नल रूल नंबर 2। बट इसको हम ये भी लिख सकते थे, एस ड्राइविंग एस से स्लैश नल, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको राइट लीनियर करके चल रहे हैं इन कंपैरेटिव टू लेफ्ट लीनियर, राइट। तो हमने इस वाले को कंसीडर करा है, ये वाला पार्ट भी सही है यहां पे। तो हमें यहां से ये समझ में आया कि एनी नंबर ऑफ एस के लिए नल ए डबल ए ट्रिपल ए के लिए ए स्टार इज द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड एस ड्राइविंग ए एस स्लैश नल इज आ कंटेस्ट फ्री ग्रामर। अब इसकी हम स्ट्रिंग कैसे जनरेट कर रहे हैं? हमने मान ली ये एक एग्जांपल 6A ड्राइव करने, भाई 6A ड्राइव करने के लिए हमने लिखा एस से ए एस, फिर इस वाले एस की जगह ए एस डाला डबल ए एस डाला ट्रिपल ए एस, फिर इसकी जगह ये डाला 4A एस, 5A एस, 6A एस, फिर नल कर दिया और सिंपली एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया, एग्रीड। अब इसी पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 0+1 का क्लोजर, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ। अब सीधा मुझे समझ में आ रहा है 0+1 का क्लोजर इज व्हाट? नल 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0, अल्टीमेटली द कॉम्बिनेशन ऑफ 0+1 के सारे कॉम्बिनेशंस, राइट। तो व्हाट वी विल डू इज, सबसे छोटी स्ट्रिंग एस ड्राइविंग नल। अब जैसे मैंने कहा ए स्टार में एस ड्राइविंग ए एस है, तो बी स्टार में एस ड्राइविंग बी एस होता। और अब मेरे से कोई कह दे कि ए प्लस बी स्टार में क्या होगा? एस ड्राइविंग 0s स्लैश 1s, राइट। 0s स्लैश 1s कैसे? नल पुट करा, इसमें 0 आया, भाई नल सबसे छोटी स्ट्रिंग, नल पुट करा इसमें 1 आया, इसके अंदर 0 ही पुट करा तो डबल 0, इसके अंदर यही चीज पुट करी तो डबल 1, इस एस की जगह ये पुट करा तो 0 1, इस एस की जगह वो चीज पुट करी तो 1 0, इस तरह से चीजें हमारी बढ़ती जा रही हैं, एग्रीड। तो हमने सिंपली यहां पे ये ड्राइव कर ली ये स्ट्रिंग्स, तो हमें सीधा सीधा समझ में आ गया दिस इज अ CFG फॉर अ गिवन लैंग्वेज। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखा WCWR पैलिंड्रोम। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमने एक चीज नोटिस करी, WCWR, W मीन्स A, B का कुछ भी कॉम्बिनेशन, C इज द सेंटर सिंबल और WR इसका जस्ट रिवर्स। अब इसको सोचना कैसे? भाई मान लो यहां पे खाली C है, ना W ने कुछ पढ़ा ना WR ने कुछ पढ़ा, सबसे छोटे स्ट्रिंग। अब C के इधर या तो A होगा तो इधर भी A, C के इधर B होगा तो इधर भी B। फिर मैंने यहां लिखा डबल A C डबल A, डबल B C डबल B, AB C BA और BA C AB। अब शायद आप यहां तक ये समझ गए होंगे मैं किस तरह के स्ट्रिंग्स की बात कर रहा हूं। यहां W में कुछ नहीं, W में A या B और W में हमारी चारों पॉसिबिलिटी AA, BB, AB एंड BA, राइट। अब ये कैसे ग्रो कर रहा है? सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है? C, तो हमेशा S से C विल बी टर्मिनेटिंग, राइट। अब एक चीज सोचनी है कि इस C को टर्मिनेट करने के लिए यूज कर रहे, तो अगर मैं ASA लिखता हूं, इस S की जगह C डालूं तो ACA, बिल्कुल सही बात। फिर BSB लिखता हूं, इस S की जगह C डालूं तो बिल्कुल सही बात ये। इस S की जगह यही चीज पुट करूं तो डबल A S डबल A
इस एस की जगह यही चीज पुट करूं डबल बी एस डबल बी, इस एस की जगह ये चीज पुट करूं तो ए बी बी ए, और इस एस की जगह ये चीज पुट करूं तो बी ए बी। तो अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 3 प्रोडक्शन रूल हमने किस तरह से लिखे हैं। और इस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए सी सेंटर है, तो हमें समझ में आया ए एस ए, एस की जगह हमने बी एस बी डाला, ये आ गया, फिर से एस की जगह बी एस बी डाला, और ये मेरी स्ट्रिंग निकल के आ गई रूल नंबर 3 के बाद, जो आप सबको क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, ए एन बी टू एन। इससे पहले अगर मैं देख लूं ए एन बी एन, भाई ए एन बी एन ए दिस ग्रेटर देन दिस, तो सबसे पहले दिस इज 0 ना। अगर मैं इसको n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहा हूं तो सबसे पहले छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, नल ए बी डबल ए डबल बी ना। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है, एस ड्राइविंग नल स्लैश ए एस बी। अब आप समझ रहे होगे, एस की जगह नल पुट कर दिया तो ए बी, एस की जगह यही चीज पुट करी तो डबल ए डबल बी, एस की जगह यही चीज पुट करी तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी। और अगर ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, देन दिस विल बी ए बी स्लैश ए एस बी। एग्रीड। और अब मेरे पास सवाल क्या है, ए एन बी टू एन, तो बट ऑब्वियस है ए डबल बी, क्योंकि यहां n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और ए एस डबल बी। तो अगर ये होता वैसे तो यहां पे आ रहा होता ए एस डबल बी स्लैश नल, और अगर ये ए टू एन बी एन है तो आप सब समझ रहे हैं ये क्या हो रहा होता, डबल ए एस बी स्लैश ए बी या नल। तो ये सारे पैटर्न्स मैंने आपके साथ यहां पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट, अब स्ट्रिंग ड्राइव करने की हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो सेंटेंशियल फॉर्म और एक डेरिवेशन ट्री। ठीक है, एक एक करके इसको देखते हैं। तो डेरिवेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, इट इज यूज्ड टू गेट द इनपुट स्ट्रिंग थ्रू द वेरियस डिफाइंड रूल्स। During parsing, we have to take 2 decisions. These are as follows. We have to decide the non-terminal symbol which is to be replaced. किस नॉन टर्मिनल सिंबल को हमें रिप्लेस करना है, और वी हैव टू डिसाइड द प्रोडक्शन रूल बाय विच द नॉन टर्मिनल सिंबल इज टू बी रिप्लेस्ड। सो बेसिकली हम 2 तरह से देख रहे हैं, लेफ्ट डेरिवेशन और राइट डेरिवेशन। लेफ्ट डेरिवेशन में हम लेफ्ट वाले सिंबल को पिक कर रहे हैं फॉर द एक्सपेंशन, और राइट मोस्ट डेरिवेशन में हम राइट वाले सिंबल को पिक कर रहे हैं फॉर द एक्सपेंशन। राइट, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में जो भी हमारे पास प्रोडक्शन रूल होगा उसमें अगर एक से ज़्यादा कैपिटल लेटर्स हैं तो उसमें हम लेफ्ट वाले वेरिएबल को बार बार एक्सपेंड कर रहे हैं अंटिल हमारी स्ट्रिंग ड्राइव होती है। दैट इज अ सेंटेंशियल फॉर्म फॉर द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और अगर हम राइट वाले को पिक कर रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, दैट इज अ सेंटेंशियल फॉर्म फॉर राइट मोस्ट डेरिवेशन। राइट, अब इसी एग्जाम्पल को देखते हुए, इन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन द इनपुट इज स्कैन्ड एंड रिप्लेस्ड विद द प्रोडक्शन रूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में चेंज होना है। सो इन द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन वी रीड द इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स हो गए, ई ड्राइविंग ई प्लस ई माइनस ई ड्राइविंग ए स्लैश बी। अब इस स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग हमें शो करनी है। राइट, अब सिंपल हमने देखा ई ड्राइविंग ई प्लस ई। हमने सबसे पहले क्या करा, इस लेफ्ट वाले कैपिटल लेटर पे काम करना शुरू करा, इसको हमने एक्सपेंड करा एज पर आर स्ट्रिंग रिक्वायरमेंट। तो हमने इसको ई माइनस ई में पुट करा, फिर हमने इस वाले ई की जगह ए पुट करा, फिर इस वाले ई की जगह बी पुट करा, और जब ये ई बच गया इसको फिर से एक्सपेंड करके ए रिटर्न कर दिया। ये मेरा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो गया इस स्ट्रिंग के हिसाब से। और इसी पे अगर मैं राइट मोस्ट देखूं जिसमें मैं स्ट्रिंग को राइट टू लेफ्ट स्कैन कर रहा हूं, तो ई ड्राइविंग ई माइनस ई। इस वाले ई को देखा तो दिस इज रिटर्न एज ई प्लस ई सिंपली। अब इस ई को मैंने ए लिख दिया, इस ई को मैंने बी लिख दिया, और फिर इस ई को हमने ए लिख दिया। मतलब ये हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन हो गया। राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं हम राइट वाले वेरिएबल्स को टर्मिनल और जनरेटिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हुए। अब ये एक और एग्जांपल जिसमें हम ये समझ पा रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ CFG फॉर इवन नंबर ऑफ एज एंड बीज। राइट, सो हमें इसमें ये समझ में आया कि इस पे कैसे आगे काम हो रहा है। ये हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है जिसकी एक्सेप्टेंस हमें शो करनी है। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में लिखा एस ड्राइविंग ए बी। अगला सिंबल मुझे क्या चाहिए, ए, तो मैंने फिर से ए बी लिखा तो ये डबल ए बी आ गया।
फिर इस वाले बी पे काम करना शुरू करा। बी पे मुझे क्या चाहिए, बी से मुझे अगला सिंबल चाहिए, सिंपली मैंने बी से बी लिख के इसको ये कर दिया। अब बी वाली चीज आई, इसके बाद मुझे नेक्स्ट सिंबल चाहिए बी एस, तो मैंने यहाँ पे बी एस लिख दिया। एस से फिर एक्स को एक्सपेंड करा, ए बी हो गया। फिर बी आया तो बी से मैंने फिर से इसको एक्सपेंड करा, बी एस हो गया। फिर एस को एक्सपेंड करा, बी ए हो गया, फिर ये आ गया। इस तरह से मैंने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में लेफ्ट वाले सिंबल को अपने स्ट्रिंग के हिसाब से बार बार एक्सपेंड करते चले गए। वही चीज मैंने यहाँ पे करी, एस ड्राइविंग ए बी है। अब इस वाले बी को मैंने सिंपल एक्सपेंड करा, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए डबल बी, ये चीज मेरी यहाँ पे आ गई। अब ये ए डबल बी आने के बाद अपना काम यहाँ पे शुरू ये होता है कि इस वाले बी पे काम होना है। इस वाले बी पे काम होना है तो मैंने बी एस लिखा। बी एस लिखने के बाद फिर इस एस पे काम होना है तो मैंने इसको बी ए लिखा। बी ए लिखने के बाद इसे ए लिख दिया, तो ये बी बी ए वाली स्ट्रिंग पीछे से कंप्लीट हो गई। अब फिर बी वाले पे आए, फिर बी पे आए तो फिर इसको बी एस लिखा, फिर इस एस को बी ए लिखा, और फिर ये चीज़ बी बी ए आ गई। और मैं हमेशा राइट मोस्ट डेरिवेशन वाले स्ट्रिंग के हिसाब से राइट टू लेफ्ट जाते हुए स्ट्रिंग का एक्सपेंशन करता रहा। अब यही एक और एग्जांपल अगर देखें, ये है एस ड्राइविंग दिस दिस एंड दिस। अब इससे मैंने समझा कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है एस ड्राइविंग ए वन बी। अब ए वन बी है, मुझे स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस चाहिए 0 0 1 0 1, राइट। अब मुझे ए को एक्सपेंड करना है, ए को एक्सपेंड करना है तो ए का मेरे पास क्या ऑप्शन है, ये और ये, तो मैंने इसको लिखा 0 A 1 B, राइट। फिर से मुझे ए को एक्सपेंड करना है, फिर से मैंने 0 A पिक करा, 0 A, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, ए से भी 0 A, इस वाले में भी 0 A, और अगली बार वाले में ए को नल पुट कर दिया, ये रिटर्न हो गया। जब ये रिटर्न हो गया तो 0 0 1 तक का काम हो गया। फिर बी वाला पार्ट बचा, बी में क्या है 0 B 1 B, तो मैंने इसको 0 B लिखा, फिर बी में मैंने इसको 1 B लिखा और इसको 1 लिख के एक्सेप्टेंस हो कर दी, राइट। अब इसी चीज को मैं अगर यहां पे देखूं तो मैंने बी को यहां पे पिक करा। अब बी को यहां पे पिक करने के बाद इसको बी को लिखा 0 B, फिर इसको लिखा 1 B, बी में पुट करा नल, तो ये 1 0 1 एक्सेप्ट हो गया, राइट। फिर जब ए पे आया इसको लिखा 0 A, फिर ए की जगह लिखा 0 A, फिर इसको नल पुट करा और ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। तो इस तरह से इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, इसमें राइट टू लेफ्ट जा रहे थे, और हम क्या नाम है स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस शो कर रहे थे। एग्रीड। सो ये जो इस लेक्चर में हमने सीखा, कंटेस्ट फ्री ग्रामर क्या है, क्यों हम कंटेस्ट फ्री ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, अल्फा ड्राइविंग बीटा वीएन, अल्फा इज वीएन एंड बीटा इज वीएन यूनियन वीटी का क्लोजर। इसके बाद हमने ये देखा कि क्या नाम है, उस पर कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस कि कैसे हम एक ग्रामर और कंटेस्ट फ्री ग्रामर लिखते हैं। इसके बाद हमने क्या नाम है डेरिवेशन ट्री देखे, 2 तरह से हम इसको डेराइव कर सकते हैं उसकी स्ट्रिंग को, या तो हम क्या नाम है डेरिवेशन ट्री की फॉर्म में कर सकते हैं या सेंटेंशियल फॉर्म की फॉर्म में कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ सेंटेंशियल फॉर्म देखी, जिसमें हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन देखा। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में हम हमेशा लेफ्ट वाले को पहले पिक कर रहे हैं फॉर द एक्सपेंशन और लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, और राइट मोस्ट डेरिवेशन में हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। So these are the basic references, and thank you. Hope you all have understand this lecture. In the next lecture, I will discuss about the various other examples of context free grammar as well as the derivation trees and sentential form. Thank you.